खुदावन आपके साथ हो। हमारे लिए आज की अंजील जलील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसके दूसरे बाब की 16वीं से 21वीं आयात मुकद्दसा। तब उस वक्त चरवाहे जल्दी से बैतलहम को गए और मरियम और यूसुफ को और उस नन्हे बच्चे को चरनी में पड़ा पाया और देखकर वो बात बताई जो उस बच्चे के हक में कही गई थी। और सब सुनने वालों ने उन बातों पर ताज्जुब किया जो चरवाहों ने उनसे कही। पर मरियम इन सब बातों को हिफ्ज करके उन पर अपने दिलों में गौर करती रही। और चरवाहे उन सब बातों के लिए खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए जो उन्होंने वैसे ही सुनी और देखी जैसा उसने कहा था। और जब उसके खतना करवाने के लिए 8 दिन पूरे हो गए तो उसका नाम यीशु रखा गया जो फरिश्ते ने उसके रहम से पढ़ने से पहले रखा था। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मसीह खुदावन में मेरे अजीज मोमिनीन, हकीकतन आप सब बाबरकत, मुबारक, पुरफजल खुदा के चुने हुए लोग, खुदा के पसंदीदा लोग और खुदा की चुनी हुई कौम हो। क्यों? क्योंकि आज आप सब लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं ताकि साल का एहतमाम खुदा के घर में आके करें और इसके साथ साथ साल के आगाज भी आप खुदा के घर से आकर करें। इसीलिए मैंने कहा कि आप सब लोग बाबरकत लोग हैं, खुदा का फजल आप पर है, खुदा की चुनी हुई कौम है। मेरे अजीजों, पाकमा कैथोलिक कलीसिया आज की इबादत में बहुत सारे मौजूआत पर गौर करने की हमें दावत देती है। सबसे पहला मौजू जो है शुक्रगुजारी, कि हम गुजरे साल
خدا کی تمام نعمتوں کا، خدا کی برکتوں کا، خدا کے فضائل کا اور تمام گزرے سال کا خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے گزرے سال ہماری حفاظت کی، ہماری نگہبانی کی، ہمیں صحیح سلامت رکھا اور ہمیشہ اپنی پاک پناہ میں ہمیں محفوظ رکھا۔ دوسرا موضوع جو ہے وہ آنے والے سال کا آغاز ہے، اس کی شکر گزاری ہے۔ آنے والے سال کے لیے نئی امیدیں، نئی تمنائیں، نئی امنگیں لے کر آتا ہے، اس لیے آج سال کا آغاز بھی ہم خدا کے گھر سے کرتے ہیں، خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے سال کا آغاز بھی کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج ہم نیک ارادے لے کر آئے ہیں سال کا اختتام کرنے، پرانے سال کو خیر باد کہتے ہیں اور نئے سال کو خوش آمدید کہتے ہیں، پرانے سال کو الوداع کہتے ہیں اور نئے سال کو اپنی زندگیوں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، 2023 حقیقتاً ہماری زندگیوں میں بابرکت سال رہا ہے، خوشیوں کا سال رہا ہے، اور اس سال بہت سارے لوگوں نے خدا سے ڈھیر و برکات حاصل کی گئی، اور آج یہاں پر موجود ہوئے ہیں ان تمام برکتوں کا، ان تمام خوشیوں کا آج ہم یہاں پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ نئے احساسات کے ساتھ، نئی تمناؤں کے ساتھ، نئے ارادوں کے ساتھ، نئی سوچ کے ساتھ اپنے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج کے دن آنے والے سال کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، کہ آنے والا سال ہم سب کے لیے خوشیوں بھرا ہو۔ آج ہم سب آنے والے سال کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، آنے والے سال کے لیے نئے ریزولوشن بناتے ہیں، ارادے بناتے ہیں کہ آنے والا سال ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے خاندان کے لیے کس طرح کا ہوگا۔ میرے عزیزوں، آج کے دن جو تیسرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے گناہوں کا اقرار بھی کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پشیمانی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سال کا اختتام کر رہے ہیں۔ پورے سال میں جتنی دفعہ بھی ہم نے خدا کو ناراض کیا ہے، شیطان کے ارادوں کے مطابق زندگی بسر کی ہے، خدا کے ارادے کو رد کیا ہے، آج ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے دلوں میں خدا سے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار بھی کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، اور پاک یوکرسٹ کے ذریعے اپنے گناہوں سے معافی خدا سے حاصل کرتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے، اعتراف نہیں کرتے، تب تک ہم معافی نہیں طلب کر سکتے۔ اسی لیے آج ہمارے پاس یہ موقع بھی ہے، ہمیں یہ موقع فراہم کیا گیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، تاکہ جو گناہ ہم نے گزرے سال کیے تھے اس کی معافی حاصل کر سکیں، اور نئے دل کے ساتھ، نئی سوچ کے ساتھ، نئی زندگی کے ساتھ نئے سال، آنے والے سال کا آغاز کر سکیں۔ میرے عزیزوں، خداوند خدا جو ہے وہ بہت ہی بڑا ہے، وہ شروع سے ہے، ابد سے ہے، اسی ابتدا سے ہے اور اسی کی ہمیشگی ہے۔ ابتدا سے اس نے تمام دنیا کو خلق کیا اور آخر تک خدا کی موجودگی اس دنیا میں موجود ہے۔ جب ہم شمسی کیلنڈر پر غور و خوض کرتے ہیں تو اس میں 365 دن پائے جاتے ہیں، 12 مہینے پائے جاتے ہیں۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ اس کیلنڈر کو دریافت کرنے والا کون تھا، اس کیلنڈر کا تاریخی پس منظر کیا ہے، یہ کہاں سے ایجاد ہوا، کہاں سے یہ ہماری زندگیوں میں آ پہنچا، میرے عزیزوں، اس کو
तख्लीक करने वाला पोप ग्रेगरी 13 था, जिसने ये सोचा कि इस 12 महीनों को और 365 दिन को एक कैलेंडर की शक्ल में समोया जाए, और उसी मुकद्दस ने इसको खुदावन यीशु मसीह निजात दहिंदा के नाम से मखसूस किया, क्योंकि साल के इख्तिताम पर दिसंबर के महीने में खुदावन यीशु मसीह हम सब के दरमियान आता है। उसने इंसानी शक्ल इख्तियार करके हम सबको निजात बख्शी है, कसरत की जिंदगी अता की है। मेरे अजीजों, खुदावन खुदा जो है पूरी दुनिया को खलक करने वाला है। वो राज़िक है, वो मालिक है, वो उस्ताद है, और उसी उस्ताद के नाम पर हमारा जो शमसी कैलेंडर है वो मखसूस किया गया है। आज के दिन हम पूरी दुनिया में अन्न का दिन भी मनाते हैं। अन्न का दिन हम इसलिए मनाते हैं कि साल के आगाज में ही हम अन्न के लिए, सलामती के लिए, शांति के लिए खुदा से दुआ करते हैं। साल के आगाज ही हम अन्न का दिन मनाते हुए शुरू करते हैं। मेरे अजीजों, आज हम फातिमा कैथोलिक कलीसिया के साथ बहुत बड़ी ईद भी मनाते हैं। मादरे खुदा, मेरी द मदर ऑफ गॉड, मुकद्दसा मरियम खुदावन खुदा की मां, वो किस तरह के 5वीं सदी में एक बिद्दत पैदा हो गई कि खुदावन यीशु मसीह की अलूहियत को रद्द किया गया। खुदावन यीशु मसीह को सिर्फ और सिर्फ मुकम्मल इंसान कहा गया था। ये बिद्दत पैदा हो गई, उसकी खुदाई कुदरत को रद्द किया गया था। नस्तूरियन जिसके जरिए ये बिद्दत पैदा हुई थी, लेकिन इस बिद्दत को वहां पर एक मजलिस हुई, वहां पर इस बिद्दत का खैर मकदम किया गया, इस बिद्दत का खात्मा किया गया कि जो खुदा पुराने अहदनामा में पहाड़ पर जाहिर होता था, बुलंदियों पर जाहिर होता था, वही खुदा जो है नए अहदनामा में खुदावन यीशु मसीह की शक्ल यानी कि अपने बेटे की शक्ल इख्तियार करके हमारे सामने आ मौजूद होता है। इसलिए वो कामिल खुदा भी है और कामिल इंसान भी है। वो अपने अंदर खुदा जैसी कुदरत भी रखता है और इंसान जैसी कुदरत भी रखता है। खुदा जो है इंसान बनकर हमारे दरमियान आता है। खुदावन यीशु मसीह को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, उसमें एहसास भी है, इंसान जैसे फीलिंग्स भी है, एहसास भी है। खुदावन यीशु मसीह रोता भी है, उसको भूख भी लगती है, दर्द भी होती है। जब सलीब पर वो कीलों से जड़ा जाता है तो वो रोता है, चिल्लाता है। इससे हमें पता चलता है कि वो खुदा भी था और इंसान भी था। इसीलिए फातिमा कैथोलिक कलीसिया खुदावन यीशु मसीह को मुकद्दसा मरियम मां के तौर पर अता करती है। इसीलिए साल के आगाज में ही हम खुदावन यीशु मसीह की मां और मादरे खुदा की ईद भी मनाते हैं। मेरे अजीजों, मुकद्दसा मरियम का ये एक डोगमा भी है, इसको चर्च का डोगमा भी कहा गया है। पूरे साल में हम मुकद्दसा मरियम की 4 बड़ी ईदें मनाते हैं, जिनमें सबसे पहले ईद जो मनाई जा रही है वो 1 जनवरी को मनाई जाती है, यानी कि मादरे खुदा। उसके बाद ईद बशारत, अनंसिएशन ऑफ द लॉर्ड, 25 मार्च को ये मनाई जाती है। उसके बाद 15 अगस्त को मुकद्दसा मरियम के आसमान पर जाने की ईद मनाते हैं, और उसके बाद 8 दिसंबर को मुकद्दसा मरियम के बेदाग हमल में लिए जाने की ईद भी मनाते हैं। मेरे अजीजों, आज हकीकतन हम सब के लिए बहुत ही बाबरकत दिन है, बाबरकत शब।
आज हमें अता की गई है कि साल का आगाज हम पाक यूकरिस्ट के साथ कर रहे हैं। खुदावन यीशु मसीह का पाक बदन और खून हासिल करके पुराने साल को अलविदा कहते हैं और नए साल का आगाज करते हैं, नए साल को खुशामदीद कहते हैं। आज की पहली तिलावत में हमने बहुत खूबसूरत बरकत को पाया है, जिसमें खुदावन खुदा मूसा और हारून को बरकत देता है और क्या ही खूबसूरत अल्फाजों के साथ खुदा उस बरकत को बनी इस्राएल पर अता करता है। जब हम इस बरकत पर गौर खोज करते हैं तो लिखा है खुदावन तुझे बरकत दे। हकीकतन आज जब हम ईमान के साथ, अकीदत के साथ, शुक्रगुजारी के जज्बात लेकर आज जब हम इस गिरजाघर में आए हैं तो खुदा हमें भी बरकत अता करता है। इस्राएल के साथ साथ हारून और मूसा के साथ साथ खुदा आज हमें भी ये कहता है कि खुदावन तुझे बरकत दे, अपने चेहरे का नूर तुझ पर चमकाए। खुदा आज अपना चेहरा हम सब पर मुनव्वर करता है, अपना नूर हम सब पर मुनव्वर करता है ताकि हम हमारी जिंदगियों में तारीकी, अंधेरे, तमाम मुश्किलात, मुसीबतें जो हैं वो जाती रहे। क्या ही खूबसूरत ब्लेसिंग आज हमें अता की गई है। आज की दूसरी तिलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल के जरिए हमें खुदा के बेटे और बेटियां कहलवाने का शरफ हासिल हमें दिया गया है कि हम सब जिन्होंने कैथोलिक ईमान में बपतिस्मा पाया और कैथोलिक ईमान में जिंदगी गुजारी, हम सब जो हैं वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आए खुदावन खुदा से दुआ करें, खुदावन खुदा का शुक्र अदा करें। आज जब हम खुदा के हुजूर आए हैं शुक्रगुजारी की एहसासात लेकर, शुक्रगुजारी के जज्बात लेकर नए साल का आगाज करते हैं और पुराने साल को खैरबाद कहते हैं, अपनी शुक्रगुजारियां खुदा के हुजूर पेश करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करके नए साल में दाखिल होते हैं। खुदावन खुदा हम सबको ये तौफीक अता करे और हम सब के लिए आने वाला साल बरकतों वाला, खुशियों वाला, हमारे खानदानों में अमन, सुलह और इत्तेहाद को कायम करे। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से।